सकता है मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, अगले 5 मिनट में बस आएगी कि नहीं, या फिर मैं किसी होटल में जाऊंगा तो कितने लोग रहेंगे, टेबल मिलेगा कि नहीं. So these are the things which happen to us in real life, and we know the possibilities, but exactly what will be happening that we don't know. When we toss a coin, we know there are two possibilities. हालांकि अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी तो उसमें थर्ड पॉसिबिलिटी भी है कि वो कॉइन ऐसे खड़ी हो जाती है वर्टिकल. लेकिन ठीक है ना, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वी नो द पॉसिबिलिटीज, बट उसमें से एग्जैक्टली कौन सा होगा जब हम ट्राई करेंगे वो पता नहीं होता है. So all the possibilities we put together in a set, and that we call as sample space, and all the possible outcomes, they are called as sample point, and then all of them we can map to the real number line. So what is the meaning of this? So what happens is your experiment can be anything, but ultimately you are expressing everything as number. Okay. और एक बार अब पता है, एक बार सब चीजें नंबर में आ गई कि फिर तो सब अपना ही खेल है. कंप्यूटर है, एक्सेल शीट है, कैलकुलेटर है, हम पेपर और पेन पे भी कर सकते हैं, राइट. So that is the idea, that everything once when it is brought in the numerical form, you can use that for anything. So these arrows that I am showing here, this is showing the mapping of the sample points to the real number line. So this is a random variable. So actually the values that we get on this real number line, they are actually the referred as random variable. And then we have another variable called scanning variable, or this small x. This is called as the scanning variable. Then I hope you also know there is something called event, which is subset of the sample space. जैसे हम that we throw that die, so we can define the event. Even number shows up or odd number shows up, or when you take a card out of the deck of cards, you can define that a picture card will come out or a number card will come out. So this is how you define the events. So those events, they are subsets of this sample space. So what happens is, when you consider the set of points here, capital X less than or equal to small x. So small x, I call it as a scanning variable or dummy variable. And as you increase the value of small x, what happens? That large number of points start happening to be on the left side of small x. Okay. जैसे जैसे ये स्मॉल एक्स जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके तो प्लस इंफिनिटी तक, वैसे क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स उसके लेफ्ट साइड में आते जाएंगे. जब ये स्मॉल एक्स जो है वो प्लस इंफिनिटी को चला जाएगा, हर कोई पॉइंट उसके लेफ्ट में ही रहेगा. और ये स्मॉल एक्स जब माइनस इंफिनिटी पे जाएगा तो कोई भी पॉइंट उसके लेफ्ट में नहीं रहेगा. ठीक है. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, एंड देन इन बिटवीन यू डिफाइन द various events. So this probability that capital X, the random variable, is less than or equal to small x, the scanning variable, that probability is a function of small x. जैसे जैसे आप ये small x change करते जाएंगे, ये probability change होती रहेगी. And that's why this fxx, this is called as cumulative distribution function, CDF, and its derivative with respect to small x is called probability density function. Okay. ठीक है. And then all these things, fxx is integral of this probability that the random variable capital X is between x1 and x2 is given by this probability that x is less than or equal to xt minus probability that x is less than or equal to x1, and that is same as the integral of the probability density function from x1 to x2, right? And then this is a very important property of probability density function, that the area under the probability density function should be equal to 1, right? That is very important.
फिर कुछ बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकल में, वो CDF और PDF हम देखेंगे. दिस इज वन PDF ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल. It is plotted like this. So whenever small x is between 0 and 1, the probability that this capital X is less than or equal to small x is just p, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है 0 उसकी. और जब स्मॉल एक्स इधर चला जाता है तो दोनों वैल्यू उसके लेफ्ट में आ जाती है. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बाइनरी रैंडम वेरिएबल इज लेस देन स्मॉल एक्स, वो 1 हो जाती है, राइट. एंड उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो यू गेट टू इंपल्स फंक्शंस. दिस इंपल्स फंक्शन हैज गॉट स्ट्रेंथ p एंड अदर वन हैज गॉट स्ट्रेंथ 1 minus p, राइट. अब ये हो गया बाइनरी. फिर ये थ्रोइंग द डाई वाला वो है. सो एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, द प्रोबेबिलिटी जंप्स बाय 1/6. 6 पॉसिबिलिटीज हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. एंड देन एज यू इंक्रीज द दिस स्मॉल एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द प्रोबेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस. और ये उसका डेंसिटी फंक्शन. So these are actually discrete random variables. They take only a fixed discrete number of values. You also get uniform or continuous random variable. जैसे ये है uniformly distributed random variable. This is B, this is A. So this is 1 upon B minus A. ये क्यों है 1 upon B minus A? Can anyone tell me? Why this is 1 upon B minus A? Anyone? चैट विंडो में कोई आंसर? Why that is 1 upon B minus A? ठीक से दिखाई दिया ना वो? You are able to see that? अरे, is there anyone listening? सब चले गए इधर उधर. I have just asked a question. What was the question I have asked? Can anyone tell me? Yes, student, sir is asking something. At least try to give the answer.
कोणी ऐकत तरी आहे का मॅडम, की आपणच आहो फक्त? नहीं सर, है स्टूडेंट्स. एटलीस्ट क्या क्वेश्चन था वो तो बोलो कोई, कि मैंने पूछा क्या है. सर 1/b-a. हाँ, वो क्यों है वहां पे? आप लोगों का हुआ होगा ना मैथमेटिक्स में कुछ पहले इसके? प्रोबेबिलिटी थियरी कभी नहीं था क्या? What is the property of probability density function? What is this property? Can anyone tell me? इक्वेशन 3.14 ये क्या बताता है? इक्वेशन 3.14. What is the property of probability density function? Main property. एटलीस्ट ये तो लिखो कि नहीं मालूम करके. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे ही कोई बैठा रहेगा तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही यहाँ बैठे बैठे बकबक कर रहा हूँ. In PDF, the integration of f of x is 1. It is the first property. हाँ. Sarika, what do you want? You don't know the answer. Could you please explain it? What is which answer? Priyanka has said it correctly that it is the property of probability density function that integration of fx equal to 1, that is area under the probability density function, is equal to 1. Right. So why that is so? That is because I will just share the screen again. That is because this property of the
probability distribution function. This is the basic definition, probability distribution function. और आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि probability is always between 0 and 1. ठीक है? So when this small x, when this goes to plus infinity, we should get probability equal to 1. So that is why, like, this is the definition, fxx is equal to integral minus infinity to plus x, this probability. तो जब ये small x plus infinity को जाएगा, that value should be equal to 1. So area under the probability density function should be equal to 1. Now if we come to this is just a rectangle. What is the width of the rectangle? Just tell me, because I am not able to see the chat window. What is the width of this rectangle? It is b minus a, and area under the rectangle should be equal to 1. So what should we do? This height should be 1 upon b minus a, so that this width into height, that area will be equal to 1. So that's why this is equal to 1. And then as you integrate it from a to b, it goes like this and goes to 1. So every probability density function, distribution function, it has to go to 1 ultimately. That's why area under this curve should be equal to 1. Okay. So is that clear? Okay. So there are some other important probability density functions. This is uniform. Then, of course, the most important is Gaussian, because that is used in a big way. This is the Gaussian function. It has got this bell-shaped curve. It is centered at x is equal to m. M is the mean value. And then this shape of the Gaussian curve is controlled by this parameter sigma. So if sigma is small, this spreads up, and if sigma is large, this becomes a narrow function. Okay. Gaussian function has got a lot of important properties. उसकी काफी important properties होती है, so it is very useful in practice. And this is the probability density function of Gaussian random variable. अगर आप Gaussian का equation देखते हैं, this one, इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है. So what they have done, they have defined a standard Gaussian random variable. एक तरीका ऐसा है कि mean is equal to 0 sigma 1 by root 2. If you do this, then the Gaussian function you get is this one, e raised to minus u square. Okay. और इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो they define one function called error function. Okay. So I will just show that here. This is the error function. Okay. इसको कहते हैं error function. Right. And then all the probabilities, we express it in terms of either error function, or there is one more thing called complementary error function, that is ERFC of u. Okay, ये है ERFC of x is this integral x to infinity e raised to minus u square du. So इसका मतलब ये है कि this is the probability density function of a Gaussian random variable, mean 0,
and sigma 1/√2, और उसका ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड देन दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन अ टेबुलर फॉर्म, और वो टेबल यूज करके ये करते थे पहले। ओके, अभी तो कंप्यूटर से एक्सेल शीट है, कुछ भी कर सकते, लेकिन पहले ये टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता था और उससे लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। एंड देयर इज अ सिमिलर फंक्शन व्हिच इज यूज्ड इन अ very frequently, and that function is called Q function. Okay, Q function. Yeah. So Q function is the probability distribution function of a Gaussian random variable whose mean is 0 and sigma is 1. Okay, ये लिखा है यहाँ पे n01, right? So why I am covering this? Because if you look at digital communication, in digital communication you have that probability of error, PE. Okay, and that PE is either in terms of complementary error function or Q function. Okay? तो उसके लिए ये मालूम होना काफी जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की प्रॉपर्टीज, क्यू फंक्शन की प्रॉपर्टीज, काफी सारे प्रॉब्लम इस पे होते हैं। वैसे ये पोर्शन गेट वालों का बड़ा फेवरेट पोर्शन है, और इस पे काफी वो प्रॉब्लम्स आते हैं। आईआईटी में तो यही पढ़ाते हैं सिर्फ, यानी जोकिंगली अगर बोलते हैं तो वहां पे सिर्फ क्यू फंक्शन, एरर फंक्शन, बस वही चलते रहता है डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको एरर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, बिकॉज दैट डिसाइड्स हाउ दैट कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूजफुल। ओके, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हैं, और आपको इसके तरफ ध्यान देना है अच्छी तरह से, राइट? ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें हम रुक जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो आई विल गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और वहां पे हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, ये पहला प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम 3.1। जस्ट अ मिनट। प्रॉब्लम 3.1 क्या है इसमें दिया हुआ? अ सोर्स ऑफ डाटा एमिट्स 4 बिट्स एट ए टाइम, यानी 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन आता है उसमें, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं? चलो टाइप करो, चैट विंडो में टाइप करो। अगर 4 बिट्स है तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं? 4 बिट बाइनरी नंबर्स। सोलह, वेरी गुड। सो they are all coming with equal probabilities, and a random variable x is defined as the number of ones in the output। सिर्फ नंबर ऑफ वंस पूछा है, वो कहां पे है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो फाइंड सीडीएफ एंड पीडीएफ ऑफ एक्स, ऐसा यहां पे पूछा है। ओके, so let me just see if I can show you चलो, ये आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड? So what we will do, we will start finding out all the combinations of sorry,
4 बिट बाइनरी नंबर्स, तो कौन से है वो? जीरो 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 जीरो, नहीं दिख रहा है ये, मुझे ही नहीं दिख रहा है। 0000, फिर 0001, 1011, 0000, फिर 100, 101, 110, 0111, 1000, 1001, 100, 1011। फिर यहाँ पे निकालता हूँ बचे हुए 1100, 1101, 1110 और 1111। तो दीज आर द 16 कॉम्बिनेशंस। लेकिन रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वंस इन द 4 बिट बाइनरी नंबर। तो ये 0000, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ वंस? 0000, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? कुछ भी नहीं है, 0, राइट। फिर इसमें है नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू 1, फिर से इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें एक और एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें फिर से 1 है, इसमें 2 है, 2 3, फिर 1100, इसमें 2 है, 1101, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है। So what are the values of the random variable? Possible values: x is equal to 0, 1, 2, 3 और 4। 5 वैल्यूज है उसकी। तो ये 0 कितने बार आ रहा है इसमें? 0 कितने बार आ रहा है? x इक्वल टू 0 कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। 16 ऑल पॉसिबिलिटीज, उसमें x इज इक्वल टू 0 एक ही बार आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू 1 कितने बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है। तो इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी 4/16। कैपिटल X इज इक्वल टू 2 कितने बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है। सो 6/16। X इज इक्वल टू 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है। और x इज इक्वल टू 4 एक बार आ रहा है। तो ये हो गया 1/16। ठीक है। अब हमने सही किया है कि नहीं, इसका एक तरीका है। कैसे करेंगे कि हमने जो भी प्रोबेबिलिटीज निकाली है वो सही है कि नहीं, ये कैसा चेक करेंगे? एनी सजेशन, एनी आइडिया? क्विक चेक करना है। आप चैट बॉक्स में लिखो या फिर वर्बली भी बता सकते हो। सबका सम करके, वेरी गुड। यहां पे आ रहा है क्या? सबका सम आ रहा है एक? चेक करो। यस, आ रहा है। सो हमारी कुछ बेसिक गलती इसमें नहीं हुई है, ये सही आ रहा है। ठीक है।
और अब इसका पीडीएफ और सीडीएफ निकालना है। ओके, तो मुझे अभी ये बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं। वैल्यूज क्या क्या थी? 0, 1, 2, 3 और 4। और यहां पे फिर आएंगे इंपल्स फंक्शंस। इंपल्स फंक्शंस में से 0 का प्रोबेबिलिटी था 1/16, राइट। फिर 1, इसका प्रोबेबिलिटी कितना था? वो मिटा दिया मैंने। 1/16, फिर 4/16 था शायद, राइट। फिर 2 was 6/16। फिर से यहां था 4/16 और फिर से ये था 1/16। 4 4 8 आंसर। यस, so this is the probability density function. Okay, this is the probability density function. I hope you are able to see this. And if I have to draw the probability cumulative distribution function CDF, तो वो ऐसा चालू होगा, यहां से यहां जंप मारेगा 1/16 की, फिर यहां पे जंप मारेगा वो 4/16 की, 16 तक जाएगा मतलब। फिर यहां से इट विल गो टू 6/16 और ऐसे करते करते वो पहुंचेगा 1 तक। ओके, सो दिस इज हाउ द probability density function is to be drawn, and this is the CDF, cumulative distribution function. Is that clear? कैसे सॉल्व करना था वो प्रॉब्लम? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, thank you. So we will go to the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिखाऊंगा स्ट्रेट अवे हम जाएंगे प्रॉब्लम 3.4 पे। प्रॉब्लम 3.4, ये मैं वही प्रॉब्लम्स उठा रहा हूं जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इसमें हम देखते हैं। नहीं तो वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सब मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है। तो 3.4 वाला देखते हैं। A unity gain amplifier is producing an output of 10 volt RMS। RMS का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? RMS का लॉन्ग फॉर्म? जरा देखूं चैट विंडो में किसी ने लिखना है क्या? What is the long form of RMS? Root means square. Root means square, यानी square root of mean value of the squares. Okay, so this is output is 10 volt RMS of the signal. फिर दूसरा उसमें क्या पूछा है? Just a minute. Problem 3.4. When the signal amplitude is doubled, the output becomes 19.3 volt RMS. यानी out 1 अगर 10 volt RMS है, तो out 2 is 19.3 volt RMS. और ये कब हो रहा है? जब सिग्नल
एम्पलीट्यूड डबल। ठीक है, calculate the RMS value of internal noise. So we have to calculate the RMS value of internal noise, right? Assume that the signal and noise are zero, mean and independent. और ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बिकॉज नॉइज इज समथिंग समवेयर इनसाइड आवर रिसीवर सर्किट, और सिग्नल जो है बाहर से आ रहा है, तो नेचुरली वो दोनों हम इंडिपेंडेंट एश्यूम कर सकते हैं। तो पहला आउटपुट है 10 वोल्ट आरएमएस। तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल का मीन स्क्वायर वैल्यू प्लस नॉइज का मीन स्क्वायर वैल्यू, आई विल पुट इट एज 1, क्योंकि सिग्मा S1 जो है वो पहली केस में है। तो पहले केस में सिग्नल पावर या सिग्नल का मीन स्क्वायर वैल्यू प्लस नॉइज का मीन स्क्वायर वैल्यू और अंडर रूट यानी आरएमएस, ये है 10। क्लियर? ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया पहली केस के लिए? ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर रूट जस्ट स्क्वायर करते हैं, तो सिग्मा S1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सिग्मा n स्क्वायर ये नॉइज का मीन स्क्वायर वैल्यू है, सिग्मा SN1 स्क्वायर सिग्नल का मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, सो इट इज बिकम 100। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल्ड। So when the signal amplitude is doubled, this mean square value, it gets multiplied by 4. So sigma S2 square is actually 4 times sigma S1 square. क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर डबल करते हैं तो उसका स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, दैट इज 4। तो उसका एवरेज वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाएगा। सो दूसरी केस जो है वो है 4 टाइम्स सिग्मा S1 स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर, नॉइज वही है, इज इक्वल टू 19.3 वोल्ट। ओके, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 टाइम्स सिग्मा S1 स्क्वायर प्लस sigma n square, this is equal to 19.3 square। आपके पास कैलकुलेटर होता तो जरा बताना मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 19.3 स्क्वायर? अच्छा, ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन? अभी ठीक है? एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि यार लाइट चालू करता हूं तो ये बोर्ड चमकती है, इसलिए मैं लाइट चालू नहीं कर पा रहा हूं। ये से क्लियर है थोड़ी। हाँ, तो थोड़ा बताना 19.3 का स्क्वायर कितना होता है? 372.49। वेरी गुड, 372.49। 49। तो हम लोगों को अभी 2 इक्वेशन मिल गए हैं, और हमें सिर्फ पूछा है कि कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ इंटरनल नॉइज। तो आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके अल्टीमेटली आपको निकालना है सिग्मा एन निकालना है। तो जो भी आएगा इधर सिग्मा एन स्क्वायर जो भी मिलेगा आपको, उसका आपको स्क्वायर रूट लेके आंसर देना है। ओके, तो क्या ये आप सॉल्व कर सकेंगे? पहले क्या करना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा, आप ये सिग्मा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 3 सिग्मा S1 स्क्वायर इक्वल टू 372.49 माइनस 100। ठीक है, और फिर ये सॉल्व करके मुझे बताना कि सिग्मा S1 स्क्वायर कितना आता है।
कितना आता है सिग्मा S1 स्क्वायर, थोड़ा वर्कआउट करके बताइए। (372 माइनस 100) यानी वो होगा 172। 272.4. Sir, 272.49. 2 पॉइंट 272.49. 27 पॉइंट 272.49. 272 कैसे आएगा? Yes ये sir, 272.49 आ रहा. Sir, 372.49 minus 100 है ना? 100 है वो 272, हाँ सॉरी वो 272.49 डिवाइड बाय 3 करना है आपको, सॉरी 272.49 डिवाइड बाय 3 करना है, तो ये 90.83. 9 90.83. हाँ 90.83। तो ये सिग्मा S1 स्क्वायर है। तो आप अगर सिग्मा n स्क्वायर हमें निकालना है तो सिग्मा n स्क्वायर विल बी 100 माइनस 90.83। ये करीब 9 के करीब आएगा ये, और जब ये 9 के करीब आएगा तो सिग्मा n विल बी अराउंड 3। ठीक है? Sir, 9.17. हाँ नहीं, 9.17 तो सिग्मा n स्क्वायर है, लेकिन उसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल कम अराउंड 3। ठीक है ना? अच्छा, अभी टाइम है ना आप लोगों के पास? एक प्रॉब्लम में एक और लेना चाहूंगा। ठीक है? Yes sir. ये जो है तीसरा प्रॉब्लम, वो ये है प्रॉब्लम 3.20। A random variable x having probability density function fx of x equal to 1 by 2 e raised to magnitude of x is applied as input to a quantizer whose transfer characteristics is shown in the adjacent figure. और करना है plot CDF and PDF of quantizer output. Okay, so what is the characteristic of the quantizer? It is 1 2 1 2, और इधर फिर है -1 -2, फिर यहाँ ये है, यहाँ ये 0.5 है, फिर ये यहाँ 1.5 है, और फिर ये इधर जा रहा है 2.5। सिमिलरली ये -0.5, ये -1.5, और ये -2.5। ये ठीक से दिख रहा है? एक
एक ऐसा क्वांटाइजर है, क्वांटाइजेशन, और ये हुआ होगा ना आपने कहीं पीसीएम में वगैरह सुना होगा ये क्वांटाइजर। यस और नो? यस। तो वैसा ही एक ये क्वांटाइजर है, लेकिन इसमें जो इनपुट दे रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है यहाँ पे। ओके, एफ एक्स एक्स इज हाफ ऑफ ई रेस टू सर, माइनस एक्सक्यूज मी सर। एब्सोल्यूट। हाँ, यस। सर, स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है। मैं एक काम करता हूं, एक जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम, मैं दूसरा चेंज करता हूं यस इसको। सर, यस। मैं मेरा वीडियो दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, ये वीडियो ऑफ कर देता हूँ और दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। अभी ठीक है क्या? Yes, sir. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द इनपुट। ये इनपुट एक्सिस है हमारी, यहाँ पे इनपुट एक्सिस है ये। और पूछा क्या है, प्लॉट सीडीएफ एंड पीडीएफ ऑफ क्वांटाइजर आउटपुट। अब क्वांटाइजर आउटपुट अगर आप इधर से देखते हो वाई एक्सिस पे, तो क्या दिखता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है क्वांटाइजर आउटपुट की, कौन सी पॉसिबिलिटीज है, यानी आउटपुट वैल्यूज क्या क्या है पॉसिबल इसमें। यहां वाई एक्सिस जो है ये आउटपुट वैल्यूज है यहाँ पे। तो ये क्वांटाइजर कौन सी वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, अगर इनपुट कहें, जैसे इनपुट 0 और बीच में होगा तो क्वांटाइजर विल प्रोड्यूस 0.5, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, इनपुट अगर 1 और 2 के बीच में होगा तो इट विल प्रोड्यूस 1.5। तो ऐसे कितने आउटपुट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है क्वांटाइजर? 6, sir. मैं, हाँ, 6। 4. 4. 6, हाँ। एक तो ये इधर +0.5, 1.5 और 2.5 है, और इधर नहीं तो -0.5, -1.5 और -2.5। 6 वैल्यूज है, यानी हम लोगों को जब ये सीडीएफ और पीडीएफ प्लॉट करना है तो हम एक ऐसे वेरिएबल के साथ डील करने वाले हैं जिसकी 6 पॉसिबल वैल्यूज है। ओके, सो if output is as considered as y has 6 values। कौन सी है? -2.5, -1.5, -0.5, फिर +0.5, +1.5 और +2.5। अब ये बताओ कि आउटपुट में +1.5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कैसे निकालेंगे? पहले ये बताओ कि आउटपुट 1.5 कब आएगा, जब इनपुट कहां पे है? मैं चैट विंडो नहीं देख सकता तो आपको बताना ही पड़ेगा बरोबर। जब आउटपुट 1.5 आ रहा है तो इनपुट कहां है? इज इट दैट डिफिकल्ट? 0 to 1। नहीं, 0 to 1 में अगर इनपुट है तो आउटपुट 0.5 है। ठीक है, तो आउटपुट 1.5 के लिए क्या होना पड़ेगा, इनपुट कहां पे रहेगा? सर, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में, करेक्ट। अब इनपुट रैंडम वेरिएबल जो है एफ एक्स एक्स, उसका 1 और 2 के बीच में होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2, sir. नहीं,
हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है, तो इससे हम इनपुट x 1 और 2 के बीच में है ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? क्या करना होगा इधर राइट हैंड साइड में? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 f of x dx. Perfect. Very good. Very good. It will be integral 1 to 2 f of x fxx dx. dx. और ये हमें दिया गया है fxx क्या है यहाँ पे, और इट इज माइनस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. अब चूंकि ये 1 to 2 है तो x इज इक्वल टू 1 to 2 करके ये इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज सेम एज probability that y equal to 1.5, क्योंकि y आउटपुट वेरिएबल है, उसकी 6 वैल्यूज हैं और प्लस 1.5 मिलने की ये यहाँ पे अगर आप इधर से देखेंगे ऐसे तो यहाँ 1.5 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम एज x इज बिटवीन 1 and 2, और x 1 and 2 के बीच में जो है वो निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ठीक तरह से इंटीग्रेट करके मिलती है. ठीक है, उसी तरह से अब नाउ यू नो द लॉजिक. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट यू सी y इज इक्वल टू 2.5? क्या रहेगा? इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या रहेगा? अब ये सिर्फ लिमिट्स का खेल है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स का खेल है बस. तो y इक्वल टू 2.5 के लिए क्या रहेगा लिमिट्स? 2 टू इधर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी. करेक्ट, 2 टू इंफिनिट. अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी 2.5, प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 2.5. और वैसे 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5. अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है इसका ग्राफ कैसा है मैं पहले दिखाता हूं, शायद आप लोगों को ये इसका ग्राफ ऐसा है. ठीक है, दिख रहा है ये ग्राफ नीचे? यस सर. हाँ, तो ये ग्राफ एक्चुअली सिमेट्रिक है, तो उसके कारण क्या होता है आपको ये 6 के 6 इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप 0 to 1 इंटीग्रेट करो, ये एरिया निकालो, सेम इज द एरिया फ्रॉम -1 to 0. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की आउटपुट विल बी 0.5 is same as probability that output is -0.5 and that is equal to this area. और वैसे ही 1 to 2 वाला एरिया वही रहेगा, 2 to इंफिनिट वाला भी वही रहेगा. तो आपको सिर्फ 3 इंटीग्रल सॉल्व करने हैं और 6 के 6 प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है. और फिर आपको ये 6 प्रोबेबिलिटीज मिल गई यहाँ पे ये 6 वैल्यूज की, तो बस उसको प्लॉट करना है एज पीडीएफ एंड सीडीएफ. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इंपल्सेस आएंगी और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये ऐसे ही स्टेयरकेस टाइप जाएगा, -2.5 से लेके तो 0 to 1 जाएगा वो. ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी और 0 to 1 जाएगा. -2.5 से चालू होगा और 2.5 पे जब आएगा तब 1 पे चला जाएगा ये सीडीएफ. इज दैट ओके? क्लियर? यस सर. तो मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, उसमें ये मैं 3 प्रॉब्लम्स कर पाया. अभी इसके बाद मैं देखता हूं. आज हम केवल रैंडम वेरिएबल्स के ही कुछ प्रॉब्लम देख सके, तो थोड़ा मैं रैंडम प्रोसेसेस के बारे में बात करना चाहूँगा. मुझे भी आशा है कि आप सुनना चाहेंगे. तो मैं मैडम से बात करके एक घंटे का सेशन लगेगा. पता नहीं कल या कैसे शेड्यूल होता है. मैं और मैडम से बात करके ये तय कर लेंगे उसको.
एनी अदर क्वेश्चन? हाँ स्नेहल मैडम. Yes, sir. We'll schedule it tomorrow. Is it okay? हाँ टुमारो ऑल्सो ओके फॉर मी. Okay, sir. फर्स्ट हाफ में ही कर लेते हैं या जैसे भी. Sure. आई विल टॉक टू पोची मैडम एंड Sure, sir. वर्कआउट. ठीक है ना. ओके. तो बच्चों को कोई पूछना है अभी या फिर लेकिन थोड़ा मैं चाहूंगा कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. आज मैं देखा केवल प्रियंका, अंकिता, प्रतीक्षा इन्होंने ही बाद में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है. तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. उतना ही टीचर लोगों को मजा आता है, वरना क्या कंप्यूटर से कौन बात करता बैठेगा, है ना. बच्चे अगर सीखना चाहते हैं और कुछ लेना चाहते हैं तो ही मजा है इसमें. ठीक है. मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ मैडम और कल शेड्यूल करेंगे फिर से. Sure, sir. Thank you so much. Thank you, थैंक sir. यू.